Very good morning to all. My name is Adesh with my channel Phone Classes, and I'm taking accountancy classes on this channel. So, dear all, this is the channel on which student can get the free education as per the CBSE 11th class and 12th class accountancy. So, no charge. Only the purpose is of this channel to provide free education to each and every child. Those are not able to move here and there and nearby to get the tuitions and all. On this channel, they can get the free education only, total free education, complete syllabus. We will cover on this channel mock test, annual exam या board question paper discussion, each and everything will be there only. They no need to move here and there. PDF notes, questions with the solution also will be provided to student as a soft copy. So now I am coming on my topic. So dear student, in your partnership book, there's a first chapter partnership fundamental in which there is a topic guarantee of profit to a partner. Okay, so there is a guarantee given to a particular partner. It may be given to one partner or more than one partner. यहाँ पर एक पार्टनर को भी गारंटी दी जा सकती है या ज्यादा भी पार्टनर्स को गारंटी दी जा सकती है फर्म के अंदर, तो उस गारंटी को फुलफिल करना है। सिमिलरली इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट भी आ जाता है। सो इट मीन related to this, it means past adjustment plus guarantee. So I can write the topic at the top of this question or this problem. So dear student, it is a past adjustment with guarantee of profit. Guarantee of profit to a partner. Okay, it means 2 points or two concepts are including in this particular problem. We have different questions, different problems as per the past adjustment, as per the guarantee of a profit to a partner. वो हमारे पास सेपरेट क्वेश्चंस हैं, लेकिन केवल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट के साथ में पार्टनर को गारंटी भी दी जाती है। तो क्वेश्चन है, अजय, विनय एंड चेतन were partners sharing profits in the ratio of 3:3:2. 3:3:2 profit sharing ratio है। The partnership deed follow provided for the following. The partnership deed है, it means whatever the agreement is there among the partner. So as per that, it means 3 points are there. First one is salary of rupees 2,000 per quarter. That is an important concept because many students do mistake in calculation related to this one. पर क्वार्टर यहाँ पर सैलरी 2,000 है, तो इट मीन्स वन पार्टनर विल गेट 4 times इन ईयर। 1 ईयर में 4 बार वो सैलरी रिसीव करेगा, तो इट मीन्स एज पर एनुअल सैलरी वी हैव टू शो, वी हैव टू टेक कंसिडरेशन इन आवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। सो यहाँ पर 2,000 रुपए पर क्वार्टर के अकॉर्डिंग वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं एज ए सैलरी। कौन कौन है वो? अजय एंड विनय, ये दोनों पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट वन, चेतन वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ रुपीज 8,000। यहाँ पर कमीशन के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, अमाउंट ऑलरेडी गिवन है जो 8,000 रुपीज एज ए कमीशन गिवन है, जो किसको मिलना है? चेतन को मिलना। ओके, नेक्स्ट वन इज विनय वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम। यहाँ पर विनय को 50,000 रुपीज पर ईयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। कौन देता है ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स अजय कहता है या विनय कहता है या चेतन कहता है,
विनय को गारंटी मिल रही है तो अजय और चेतन कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन इस गारंटी को बॉन्ड करेगा, फुलफिल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2015 was rupees 1,50,000, which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio of 2:2:1, without taking into consideration the provisions of partnership deed. It means whatever the partnership deed is there, so as per that, note salary, note commission and guarantee was not distributed and not considering when the profit is distributed. Means 1,50,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ये जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ऊपर की सैलरी, कमीशन और उसकी गारंटी को ध्यान में नहीं रखा गया, ठीक है। और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में किया? 2:1 में, जबकि इनका प्रॉफिट 3:2 का है, तो इट मीन रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आगे कहते हैं पास नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री पास आउट करनी है। नोट एंट्रीज यहाँ पर भी ध्यान रखें, एंट्री ओनली वन जर्नल एंट्री वी हैव टू पास फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। जब भी ऐसा कुछ वर्ड लिखा होता है, शो योर वर्किंग क्लियरली, तो डियर स्टूडेंट उसमें आपको वर्किंग नोट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में ही शो करना है। ऐसी गलती ना करें कि आप बैक साइड में उसकी वर्किंग नोट को शो कर रहे हैं और सॉल्यूशन आप एक अलग पेज पर कर रहे हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट के मार्क्स अवॉर्डेड होंगे सेपरेटली, वर्किंग नोट का अपने अलग मार्क्स होंगे वहां पर। तो यहाँ पर अजय के लिए मैं ए डिनोट कर देता हूँ, विनय के लिए मैं बी डिनोट कर देता हूँ एंड चेतन के लिए मैं सी डिनोट कर देता हूँ। सो सबसे पहले इन्होंने प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of, in which ratio? 2:2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पार्टनर क्रेडिट हुए होंगे और फर्म प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा, am I right? जब ये मिस्टेक कर रखी है तो इसको रेक्टिफाई करना है, तो इट मीन प्रॉफिट फर्म के द्वारा वापस लिया जाएगा। तो फर्म जब दिया था तो डेबिट थी, अब लिया जाएगा तो क्रेडिट होगी। कितने अमाउंट से क्रेडिट होगी? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 1,50,000 से। और फर्म क्रेडिट होगी तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट होंगे। किस रेशियो में इन्हें बांटा था? 2:1 में। तो इट मीन्स 2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इट मीन्स कितना आने वाला होगा? ए के लिए 60,000, बी के लिए भी 60,000 और सी के लिए 30,000 रुपीज का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ओके, आफ्टर दिस after this we have to provide we have to provide salary of rupees 2,000 per quarter to Ajay and Vinay. So I can write as a salary. ओके, सो सैलरी किस किस पार्टनर को मिल रही है? अजय को मिल रही है और विनय को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म में बनता है, फर्म के अंदर यहाँ बनाया जाता है। तो इट मीन्स ये जो भी चीजें पार्टनर्स को अलाउड होती है वो सब डेबिट होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन एंड ऑल। तो यहाँ पर फर्म मेरी डेबिट होगी सैलरी के लिए, तो पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो इट मीन्स मैं ए के लिए पहले क्रेडिट करता हूँ सैलरी से, उसको कितनी सैलरी मिली है? 2,000 पर क्वार्टर, तो इट मीन्स उसको 4 टाइम सैलरी मिलेगी, यहाँ पर 4 टाइम सैलरी मिलेगी, तो इट मीन्स 8,000 रुपीज इसको सैलरी रिसीव होगी। वैसे ही विनय है, विनय को भी क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपीज से एज ए सैलरी। टोटल हमारी जो फर्म है वो डेबिट होगी 16,000 रुपीज से। बेटा डाउट है इसके अंदर कोई? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमीशन। कमीशन कमीशन किसको मिल रहा है? चेतन वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8,000।
So similarly, if any commission given allowed to any partner, so that amount we show in profit loss appropriation account debit side, वो हम डेबिट साइड में ही शो करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर सी को 8,000 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है, तो फर्म यहाँ पर भी डेबिट होगी 8,000 रुपीज से। तो इट मीन्स पार्टनर को जो सैलरी मिलनी थी, जो कमीशन मिलना था, वो हमने अब शो कर दिया है। इसके बाद ये कहते हैं विनय वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000। तो पहले अभी तो हम लोगों ने जो ये ओमिशन कर रखा था या प्रोविजन कंसिडर नहीं कर रखा था, पहले तो हमने ये सब कंसिडर कर लिए हैं। अब पहले इनके बैलेंसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी गारंटी को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा। सिमिलरली पार्टनर्स के लिए भी डेबिट क्रेडिट को टोटल करेंगे हम लोग। 60,000, 8,000, 60,000 एंड 8,000। डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्म में क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा 1,26,000 का। 1,50,000 से 24 माइनस करेंगे। ऐसे ही सी के लिए डेबिट बैलेंस आएगा 22,000 रुपीज, और बी के लिए और ए के लिए 52,000, 52,000। okay, here this is the balance amount, this is the balance amount। now जो करेक्ट प्रॉफिट हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था हमारा, जो करेक्ट रेशियो है 3:। अगर कभी भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमेशा करेक्ट रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। जो क्या है हमारा 3:2 का रेशियो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,26,000 रुपीज, क्योंकि फॉर्म हम लोगों को नील करनी होती है, डेबिट और क्रेडिट ऑफ फॉर्म का नील हो जाएगा बिकॉज बोथ साइड इट इज इक्वल। एनी डाउट? अब 1,26,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो इसको कितना हो जाएगा टोटल, 336 और 2 8, 8 से डिवाइड करेंगे 8, कितना अमाउंट आने वाला है So we already calculated the profit. So it means as per the ratio 3:3:2। तो ए के लिए हमारा 47,000 आता है, फर्म यहाँ पर डेबिट है, तो पार्टनर क्या होंगे यहाँ पर, पार्टनर विल बी क्रेडिट। कितना, 47,250 रुपीज से। वैसा ही बी हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा 47,250 रुपीज से। एंड सिमिलरली सी, भी हमारा क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा 31,500 से। तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका डिस्ट्रीब्यूट रहा है। तो सो डियर ऑल, सो व्हाट इज द गारंटी, इट मीन्स बी विल गेट अ 50,000 रुपीज एज ए गारंटी। तो इट मीन्स यहाँ पर जो बी है, बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है 47,250। सो कितना अमाउंट और मुझे प्लस कर देना चाहिए कि इसका 50,000 रुपीज हो जाए यहाँ पर, इक्वल्स टू में ये टोटल 50,000 रुपीज आ जाए। तो क्योंकि गारंटी हमारी फुलफिल हो जाएगी उसके लिए। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। तो यहाँ पर कितना अमाउंट मुझे प्लस कर देना चाहिए, आई थिंक 2,750। आर यू गेटिंग? यस सर। और this is 2,750, it is the deficiency। what is this? Deficiency।
ओके। It is the deficiency. So deficiency is equal to 2,750 rupees. Who will bond this deficiency? Now the question is, who will bond this deficiency? 2,750 rupees. A and C. When the information is not there, okay, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो पार्टनर्स हैं वो ही सभी पार्टनर्स को बॉन्ड करनी होगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:3:2। तो बी को तो यहाँ पे गारंटी मिल रही है, तो बाकी कौन बचा? ए एंड सी। तो उनका रेशियो क्या आता है? 3:2। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। सो I am talking about this ratio. So 3 ratio and 2 ratio. So it means 3/5, and for C that is 2/5. Just do the calculation. And till then I am adding 2,750 rupees here. So now 2,000 rupees. The difference of these two we have to do. And 2,750 रुपीज का डेफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा? ये आता है 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जो 25, 2 5 5 जो 0 मल्टीप्लाई 3, सो इट इज 0 1,650 रुपीज फॉर सी। into 2, that is equals to 0, it is equals to 1100। ओके, दिस इज द डेफिशिएंसी। अगर यहाँ पर हमारा पार्टनर बी क्रेडिट हो रहा है तो इट मीन इसके यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, तो इन दोनों के यहाँ से जब माइनस होगा तो माइनस होने पर ये दोनों पार्टनर डेबिट होंगे। इस चीज का ध्यान रखें। 1,650 ये इसका फाइनल अमाउंट आने वाला होगा। और वैसा ही सी के लिए हम लोग करेंगे 1,100 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। बट यहाँ पर अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो ये दोनों पार्टनर क्या होंगे? डेबिट होंगे। किसके लिए? ये जो डेफिशिएंसी कैलकुलेट हो रखी है। डेफिशिएंसी। सो ए भी हमारा डेबिट होगा 1,650 रुपीज से, और सी भी हमारा डेबिट होगा 1,100। बेटा इसके अंदर कोई डाउट है? नो सर। नहीं। देखो यहाँ तक हमारा फर्म का रोल था। अब जो डेफिशिएंसी आती है कोई अमाउंट, तो वो जो बाकी के पार्टनर हैं वो ही उसको बॉन्ड करेंगे। अब हम लोग केवल डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे और उससे ही हमारी जर्नल एंट्री पास आउट हो जाएगी। मैं अगर सबसे पहले ए के लिए देखूं तो यहाँ पर मेरा 53,000 टोटल आता है, 650 रुपीज ए के लिए, और 47,250 इधर आता है। तो मेरा डेबिट साइड में इफेक्ट आने वाला होगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? नेट इफेक्ट। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? माइनस करेंगे अगर हम लोग तो लास्ट में 400। So this is the calculation of deficiency. It means 27,500 ये डेफिशिएंसी आई थी बी के लिए जो ए और सी बॉन्ड करेंगे। अगर यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर अगर हमारा बी है, ये अगर क्रेडिट हो रहा है डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, तो बाकी के पार्टनर डेबिट होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर रिसीव कर रहा है और ये पे कर रहे हैं। तो ये रिसीव करेगा तो क्रेडिट हो रहा है, और ये पे करेंगे तो डेबिट होगा। तो
इसको करने के बाद हमने टोटल किया, इधर सबसे पहले ए का करते हैं हम, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 53,650, क्रेडिट साइड 47,215। हमने टोटल करने के बाद इनका डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाला जो कि 6,400 डेबिट बैलेंस आता है ए के लिए। सिमिलरली बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, 52 डेबिट है और 50,000 क्रेडिट साइड, जिसमें कि 2,000 रुपीज डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। 52 में से माइनस करेंगे 50 को, 2,000। सिमिलरली सी के लिए करेंगे जिसमें उसका 8,400 क्रेडिट बैलेंस आ जाता है। तो दिस इज द नेट इफेक्ट फॉर विच वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री, जिसके लिए हम लोगों को जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो ए और बी तो हमारे क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। ओके, तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास आउट कर देते हैं, जो जिस एंट्री की ये बात कर रहे हैं। तो एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 6,400। सिमिलरली बी इज ऑल्सो डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है बी, एंड सी इज क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। सो डियर स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान रखें, हम लोग यहाँ कैपिटल ही लिख रहे हैं, करंट नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो फिक्स कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन यहाँ पर हम लोग जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही शो करते हैं। दिस इज द जर्नल एंट्री। ओके, दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन। 2 मार्क्स इस जर्नल एंट्री के होने वाले हैं आपके बोर्ड के अंदर, और 2 मार्क्स का ये वर्किंग नोट होता है। तो ये टोटल 4 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सो ओके, थैंक यू ऑल। once again, only this is only the one question in your book in which the past adjustment and guarantee of profit to a partner दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन के अंदर है। हो सकता है एक या दो इलिस्ट्रेशन हो आपके, लेकिन क्वेश्चन अभी एक ही है। ओके, और कहीं बुक से अगर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो प्लीज उनको डिस्कस करने के लिए आप शेयर कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर क्लास। ओके, थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से बच्चों को पहुंचाइए ताकि वो क्लास को ज्वाइन कर सकें, इनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू ऑल।